طرف بڑھتے ہیں. زبور 84 جو قرآ کے نام سے منسوب ہے اور یہ وہی قرآ ہے جس میں 10 مزامیر 150 میں سے لکھے ہیں. اور یہاں پر جب یہ زبور لکھ رہا ہے تو جب ہم ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو یہ قرآ یہ زبور کیوں لکھا, اس نے کیوں لکھا اور اس کو لکھنے کی کیوں یہ ضرورت درپیش آ گئی کہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اے خداوند لشکروں کے خدا میری دعا سن, اے یعقوب کے خدا کان لگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کان نہیں لگاتا ہے, خدا کے کان نہیں ہے, خدا کے کان ہے, وہ لگاتا ہے اور سنتا بھی ہے, لیکن یہ یہاں پہ زور دے رہا ہے, یہ یہاں پہ زور دے رہا ہے خداوند جو میں بات کہہ رہا ہوں انسانی نقطہ نظر سے, انسانی نقطہ نظر سے, کہیں تو ایسا نہ کہ درگزر کرتے. جب خدا انسان بات کرتا ہے نا خدا سے, وہ تڑپ میں ہوتا ہے, وہ مشکلات میں ہوتا ہے, وہ زور لگاتا ہے, وہ زور لگاتا ہے, خدا میری دعا کو سن, خداوند اپنے کان میں میرے والے لا. اکثر ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, خداوند تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ تو ہمیں چھو نہ سکے, خداوند تیرا کان بھی بھاری نہیں ہے کہ میری آواز نہ سن سکے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں, در حقیقت ہم خدا کو اس کے وعدے یاد کرا رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں خدا کو ڈکٹیشن دینے والے؟ ہم کون ہیں خدا کو ایڈوائس دینے والے؟ ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ خدا کو سکھا سکے. در حقیقت جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اپنی محبت اور ان سچائیوں کو جو بائبل کے وعدے ہیں, خدا کہتا ہے کہ میں قہر کرنے میں دھیما ہوں, شفقت کرنے میں نہیں ہوں. میرا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ میں تجھے چھو نہ سکے, اور میرا کان بھی اتنا بھاری نہیں ہے کہ تیری آواز نہ سن سکے. ہم اس وعدے کو خدا کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں, خدا ان یہ تجھے وعدہ کہا ہے اور یہ بائبل کے پیٹرن کے مطابق ہے. جب دعا کیا کرے تو یہ کہا کرے خدا بائبل کے وعدے جو بائبل میں تُونے اپنے خدام کو کہے ہیں وہ میرے لیے ہو, بائبل کی سچائیاں میرے لیے ہو, بائبل کے پرومسز جو تو نے کیے ہیں اپنے ڈسائپل سے, اپنے پروفٹ سے, وہ سارے میرے لیے, میری نسلوں کے لیے ہو. ہاللیلویا, ہاللیلویا, پریز اللہ. اب یہ جو زبور لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ زبور جب لکھا گیا تو بنی پورا جو ہے وہ خداوند میں مسرور تھا اور اتنا تڑپتا تھا خدا کے لیے کہ دن رات اس کو صرف خدا کی یاد ہی آتی تھی. اور وہ جب یہ زبور لکھ رہا ہے تو بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل میں نہیں تھی, وہ اپنے وطن سے چلا وطن ہو چکی تھی, اپنے وطن سے چلا وطن ہو چکی تھی. بنی اسرائیل قوم کو اپنے ملک سے نکال دیا گیا تھا اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے. کوئی کہیں پہ ملک میں رہ رہا ہے, کوئی کسی ملک میں رہ رہا ہے, کوئی کسی شہر میں رہ رہا ہے, لیکن اس کے اندر ہر ایک یہودی شخص, بیٹی, بیٹے, بہن, بھائی کے اندر ایک لالسا تھی کہ ہم اپنے اس مقدس شہر میں, یروشلم شہر میں, جہاں پر خدا کی ہیکل ہے, خدا کا گھر ہے, ہم جا سکے, سکونت کر سکے, کیونکہ وہ ایسا ایک شہر ہے, ایسا اس شہر میں ایک گھر ہے جو کسی انسان کا نہیں بلکہ خدا کا گھر ہے. ہاللیلویا. وہ تڑپتے تھے اور یہاں پہ بنی پورا اپنی تڑپ کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ بے بس ہے کہ وہ جا نہیں پا رہا ہے, وہ خداوند سے کہتا ہے خدا میری دعا کو سن لے, خدا یعقوب کے خدا, اے لشکروں کے رب, خدا کو پکار رہا ہے. خدا تو لشکروں کا رب ہے, رب الافواج ہے, تو نے لشکر بنائے ہیں, تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. تیرا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ تو ہمیں چھو نہ سکے, بھئی تیرا کان بھی اتنا بھاری نہیں ہے کہ میری التجا کو نہ سن سکے. اے میرے رب ذوالجلال, اے رب العالمین, میری دعا کو سن اور میری دعا کے اوپر کان لگا اور مجھے اپنے ملک میں واپس لے جا. مجھے اپنے ملک میں, یہ پرپس تھا, یہ ایک اس کی درخواست تھی خداوند کے حضور زبور لکھنے کی, اور وہ چاہتا تھا کہ خدا کے مسکن کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرے اور خدا کے گھر میں چلا جائے, خدا کے گھر میں چلا جائے. آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو کہنا پڑتا ہے کہ خدا کے گھر میں آئے, خدا کے گھر میں آئے, ترلے منتیں سماجتیں کرنی پڑتی ہیں لیکن وہ نہیں آتے. لیکن یہ ایسا شخص تھا جو کہتا تھا میں خوش ہویا جدوں مینوں آکن لگے کہ آؤ یہوہ دے, میں خوش ہویا جدوں. آج لوگ خوش نہیں ہوتے. جب کوئی بہن یا بھائی کہتا ہے نا باجی بہن ذرا خدا دے گھر آنا, اب انڈرسٹینڈ کریں وہ تڑپ رہا ہے, وہ تڑپ رہا ہے. کہاں پر
खुदा के घर अपने मुकद्दस शहर यरूशलेम में। क्यों? जला वतन वो होता है जिसको अपने घर से निकाल दिया गया हो, जिसको अपने शहर अपने मुल्क से दरबदर कर दिया गया और उसको पनिशमेंट दी हो कि तूने आना नहीं है भाई, तूने नहीं आना है, अगर तू आया तो तुझे मौत की सजा होगी, तुझे मौत की सजा होगी। अब वो इतना खुदा के लिए तड़प रहा है, इतना अपने आप को मिटा चुका है और खुदा के आगे आहोजारी गिरियाजारी कर रहा है, तो खुदा मैं मर रहा हूं, खुदा मैं मर रहा हूं, मेरे अंदर से जान जा रही है, क्योंकि मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, मैं आसमान पर जाना चाहता हूं, वहां पर जहां पर तू है, वहां पर जाना चाहता हूं जहां पर तेरी बातें होती हैं। वो दुनिया की बातों में मसरूफ अमल नहीं है, उसका किरदार दूसरा दुनिया की किरदार कशी करने में नहीं है जिस तरह हम आप और मैं करते हैं, वो दूसरे लोगों को पसंद करने के चक्करों में नहीं है, वो इस ख्वाहिश का मुंतज़िर है कि खुदा के घर में जाए, खुदा की बातों को सुने, खुदा को देखे, खुदा के साथ बातचीत करे, कम्युनिकेशन करे, ताकि वो खुदा में समा जाए और खुदा उसमें, और दुनिया की कोई बातें दुनिया उसके अंदर करे। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है? यकीन जाने हम चर्च में आकर भी चर्च में नहीं होते हैं, चर्च में आकर भी हमें कहना पड़ता है कि भाई आप उठाए दुआ करें, हमें कहना पड़ता है कि भाई खुदा के काम करें, हमें कहना पड़ता है आंखें खोले सोए ना, हेलो लाहौर आ गया है, उठ जाए लाहौर आ गया है, सो रहे होते लोग। अगर सोना ही सोने के लिए चार पाई घर में भी है ना, चर्च में बरकत हासिल करें, चर्च में अपने आप को चुस्त कर ले, तवाना कर ले, ये सोने की जगह नहीं है भाई, ये कोई होटल नहीं है जहाँ पे हम आ गए और हम रेस्ट करेंगे, ये रेस्ट रूम नहीं है, यहाँ पर जमीनी बातें खत्म, यहाँ पे आने वाला की चीजों की तलाश में रहना है, यहाँ पर आसमानी बातें करनी है, यहाँ पर आपको दुनिया की चीजें नहीं मिलेंगी, आपको दुनिया से आपका रिश्ता हम खत्म करने के चक्करों में है और खुदा के साथ आपका रिश्ता पेवस्त करने के मूड में। हम चाहते हैं मटीरियलिज्म से निकल जाए, आप दुनिया और ये लफ्जों से निकल आए, ये लफ्जों के जालों से छूट ले, अपनी जिंदगी को छुड़ा ले, और आपके लफ्ज बड़े नहीं होने चाहिए, आपकी दलील और आपके किरदार बना होना चाहिए। लफ्ज क्या है? लफ्ज क्या है? अच्छे अच्छे लफ्ज तो दीवारों पे भी लिखे होते हैं, क्या दीवारें अच्छी हो जाती है? अपने किरदार को पानी देना शुरू करे, अपने किरदार को पानी देना शुरू करे, बीज बोए ताकि कल को अच्छी फसल काट सके। क्या करना है आपने? आपको सोना चांदी हीरे मोती से रात से जान नहीं छूट रही और खुदा चाहता है ये मुफ्त में इनाम में मिल जाएगी, इसलिए मेहनत मत करो। बड़ी कूरा ने जब ये ज़बूर लिखा तो उसने खुदा के घर की बात की है, उसने कहा मैं तेरे घर में जाना चाहता हूँ, ऐ खुदा लश्करों के रब है, यकूब के खुदा, वो खुदा को वास्ते दे रहा है, बता रहा है कि तू यकूब का खुदा है, कि खुदा को नहीं पता वो अब्राहम और यकूब का खुदा है। वो याद दिला रहा है कि भाई तूने इन नस्लों से वादे किए थे कि मैं उनका खुदा हूँगा, जो उनको बरकत देगा उनको मैं बरकत दूंगा, जो उनको लानत देगा मैं उनको लानत दूंगा। और खुदा को ये कह रहा है लश्करों के खुदा को ये नहीं पता है कि वो लश्करों का खुदा है, और खुदा को ये याद दिला रहा है कान न खोल के मेरी गल सुन ले, कान ला। अब वो उसको सिखा रहा है जिसने उसको पैदा किया, जिਵੇਂ मां प्यो कहते हैं मैनू ना सिखा, मैं तैनूं पैदा किया, तू नहीं मैनू किया। अब खुदा ने पैदा किया, वो खुदा को याद दिला रहा है भाई ऐ लश्करों के ऐ खुदा, ऐ यकूब के खुदा, कान लगा, मेरी दुआ की तरफ कान लगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मैं तेरे मस्कन में आ जाऊँ। मस्कन का मतलब होता है वो जगह जहाँ कोई रहता हो, और मस्कन में वो रहता है जो खुदा हो, और वो खुदा के घर में जाना चाहता है। हालेलुया। ये पैदा करो वास्ते तालीम जाओ, खुदा के घर में आए भाई। हमें तो खुदा के घर से निकाला नहीं ना गया, और किसी ने काट दिए तो खुदा के अंदर सो गला करता, उन्होंने मुझे कुछ काट देता तो दोबारा खुदा ने कह रहा खुदा को माफ कर दे, कोई गलती हो गई है, वापस लाया, वापस लाया। ये चीज रखे अपने अंदर, खुदा के घर में आने की लालसा रखे, खुदा के घर में आए, जब कोई कहे आपको खुशी से आए, खुशी से एक्सेप्ट करें खुदा के कलाम को। जब आगे लिखा है उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं,
नवी आयत को देखते हैं पहले, ऐ खुदा हमारी सिपर, ऐ खुदा, ऐ हमारी सिपर। लफ्ज सिपर कितने लोगों ने सुना हुआ है लफ्ज? कभी दुआओं में इस्तेमाल किया? दुआओं में इस्तेमाल किया? अब अंडरस्टैंड करें, ये हालात है हमारे चर्च के, ये हालात हैं हमारे चर्च के कि ये लफ्ज पता नहीं कितनी दफा डिस्कस किया गया है, और बड़ों और छोटों में इसका माने क्या है? उम्र आज का तो बड़े नहीं करने, कहना मेरे बाल चुके हो खड़े हैं, जब बच्चे ने बाल चुके होंगे, मुझे ऐनक लग गई है। मैंने कल देखा वो बच्ची हमारी भाजी है, उसको ऐनक लग गई है, वो रोज को भी लगी हुई थी, उन्हें तुझे फर्क पै गया, बड़े छोटे साथ क्या कर। अच्छा, एक किस्म की बीमारी बुढ़ापे च नहीं, शुगर दी, और जमते बच्चे में शुगर की बीमारी हो जाती, फिर जमता बच्चा भी बड़ा है होता है। भाई कद कुद ना, बिना इलम दे बंदा कुछ भी नहीं, बिना इलम दे बंदा कुछ भी नहीं, भावे उम्र हजारों साल हो, ते इलम बिना नहीं कोई अकल दी गल आंदी, भावे दुध वांगू चिट्टे बाल हो, चिट्टे झाड़ियां दे विच भी खुदा च तां कट्टा ही पिया हो, अगर अकल की गल नहीं है। मैंने कहा रूहानी बलूगत नहीं, रूहानी बलूगत, रूहानी तौर पर बड़े होते, रूहानी तौर पर बड़े होते, एक काते से चिट्टे बालों से बड़े ना हो। हम उनको बुजुर्ग नहीं मानते, हम उनको बुजुर्ग, बाइबल मुकद्दस में जितने लोग थे वो जवान थे, और उनको बुजुर्ग का एल्डर का खिताब दिया गया। आप ये मत समझिए किसी को एल्डर कहा जाता है तो समझना बड़ा बाबा या कोई होएगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये तस्वीर नहीं है एल्डर की, वो नौजवान लोग होते हैं, 30-35-40 साल के लोग होते हैं, उनको एल्डर कहा गया। एल्डर वो नहीं होता जो चिट्टा चाटा हो, एल्डर वो होता है जिसका किरदार बड़ा हो। तालीम की बात की समझिए, मैं किरदार की बात क्यों कर रहा हूँ? तो खुदा को ये लफ्ज नहीं चाहिए, खुदा को आपके बड़े बड़े लफ्ज नहीं चाहिए, खुदा को आपका किरदार चाहिए, खुदा को आपका। भाई हमें अपना मजहब ना दिखाए, किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत पोस्ट दी थी किस वक्त में, हमें अपना मजहब मत बताए, हमें अपने किरदार बताए, हमें अपना अपने किरदार को सुनो तो मजहब किस तरह है। चीचियां चढ़नी शुरू हो जाती, गुस्से आने शुरू हो जाते, 4-13-12-13-50-100 बजे होंगे, और गल क्यों कर दी है? तो ये किरदार है हमारा, ये मसीहत और ये रूहानियत है, ये मसीहत है और ये रूहानियत है, ये नहीं चाहिए खुदा। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, खुदा ये कह रहा है, खुदा से बड़ी बुरा, ऐ खुदा, ऐ हमारी सिपर। सिपर जो लफ्ज है जो उर्दू लुगत में इस्तेमाल होता है वो ढाल के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? आज से पहले नहीं ना सीखा तो चंद्रना पाली साजिद ने गल समझाई थी, कितने समझाई थी? अच्छा गल है मेरे को सुनने तो ना किसी होता रहना, अभी बड़ी गंदी गल। और बहुत सारे लोग चर्च के ऐसे जो मेरे सीखते और मेरा नाम ही लेते, मुझे अच्छा लगता है। बात फॉलो करें, बताया करें। अभी मैंने ये बात बताई ना, सिपर ढाल को कहते हैं। अब ढाल क्या है? ढाल जब कोई शख्स फौज के लिए लड़ने के लिए निकलता, फौजी अक्सर लोग होते हैं, जंगजू लोग, अगर लड़ाई के लिए निकलते तो उनके पास एक आला होता है, लड़ने वाला आला, और वो उससे अटैक जब कोई करता था तो वो रोकते थे। इस तरह अब ये दिखाई पाए फर्स्ट किया, ये कोई एक आला है पकड़ा हुआ, अब आगे से भैया अब अटैक करेगा मुझे, यहाँ पे आएगा, और आगे से ये मैंने रोका है, ये जो चीज है ना मैंने ये रोकी है, ये ढाल है, ये क्या है? ढाल है। तो सिपर ढाल को कहते हैं। इन्होंने मुझ पर अटैक किया, लेकिन गौर करें मैंने यहाँ पे इससे रोक दिया, और बाइबल मुकद्दस से बड़ी कोई सिपर नहीं, बाइबल मुकद्दस से बड़ी सिपर कोई, जब भी कोई अब्लीसी ताकत, जब भी कोई अब्लीसी ताकत अटैक करेगी आपकी जिंदगी पर, तो खुदा आपकी सिपर हो, खुदा आपकी सिपर हो। ये एक ऐसी शील्ड है, वो दुश्मन आपके ऊपर वार करेंगे तो ये ढाल के लिए काम आएगी, ढाल के लिए काम करेगी, ये मुहाफजत करेगी आपको हर तरह की बुराइयों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, जादू, टूना, तबीज के असर से ये सिपर जो है ना आपको बचाएगी। हालेलुया, ऐ खुदावन, ऐ खुदा मेरी सिपर, लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरी ढाल। तो हम अपनी ढाल किसको समझते हैं? सच्चाई से बता, अपने भैन भरावां, अपने माँ प्यो, अपने रिश्तेदारों,
घट ही लोग बोल के जब खुदा बनाने खुदा मेरी ढाल है वो सारे एक साइड पे हो जाए। मैं आपको बता दूं एक वक्त आएगा भाई साथी है कि आपकी माँ भी आपको छोड़ देगी। आपकी बोले मैं नहीं कह रहा छड़ दे लेकिन छड़ देगी क्योंकि मैं नहीं कह रहा मैं नहीं कह रहा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो हवाला ले लीजिए। हवाला आपका बाप भी छोड़ देगा। कौन छोड़ देगा? अच्छा है तो बड़ी अजीब सी बात। जल्दी जरा बात को मेरे साथ रहा करें ताकि मैं आगे बात कर सकूं। आपकी माँ भी आपको छोड़ दी, कौन छोड़ देगा? और आपका बाप भी आपको छोड़ देगा। आपकी बहन भी आपको छोड़ देगी, आपका भाई भी आपको छोड़ देगा, आपकी औलाद भी आपको छोड़ देगी। ये बच्चों को संभालने दीजिए जिनकी बच्चे हैं, सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन कोई नहीं आपको छोड़ेगा। वो कौन है? फिर मान का था अपने आप मान। इसलिए यहां पर बनीपुरा ये कह रहा है ऐ खुदा ऐ हमारी सिफत देख, तू हमारी ढाल है देख जरा मेरे वाले वेख मेरे हाल में वेख और अपने ममसूह के चेहरे पर नजर कर। इस पर नजर कर, अपने ममसूह पर चेहरे पर नजर कर। कभी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ खाना खराब करते हैं, खुदा करेगा भी खाना खराब हो जाए। यकीन जाने अपने इंसानों से मैंने ये बात सुनी। भाई साहब ने मेरा खाना खराब करता है, मना ना करना, मैं भी एंजी करना जी। मेरे मुंह पे करते हैं और मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं क्या करूं? बात का यकीन जाने सच भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए बोलना। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सच बोलना मुश्किल हो जाता है। मैं किसी शराबी शख्स के पास चला गया और दुआ करता रहा तौबा ने की एंड मर गया। और उन्होंने बाप ने कहा भाई साहब दुआ करो मेरे पुत्र वास्ते। मैं तो पुत्रों से भी दुआ करनी, मर गया बस ये जो कुछ करना कर लिया। किसी ने कहा जी तो दो जगह दे, मैं किवें दे दे? बाप अब्राहम की गोद की जगह दे, मैं कही खाली पई क्यों दी गोद जाना? भाई नशे करके मर गया, नाल एक बंदे दूजे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मर गया। शराब पीती ने 10 बंदे ने, 2 बंदे इकट्ठे मर गए। आपके दोस्त की होया, दूसरा भी दोस्त की होगा, तो किस तरह जन्नती होगा? कैसे हम सच नहीं बोल सकते। वो सच आज से कई साल पहले मुझे मुश्किल में पड़ गया। अब वो शख्स मुझे कुछ डायरेक्टली भी देते थे, डायरेक्टली भी देते तो मैंने घर च बुलाते थे, घर च गया अंडरस्टैंड करें। सच बोलना भी मुश्किल हो जाता है, मैं नहीं बोल सकता। तो सच बोलिए तो फिर नफरत नहीं करते। यकीन जाने कलाम सच्चाई पर मबनी है। हम किसी को खुश करने के लिए कलाम नहीं सुना सकते। बाइबल बताती हाँ की जगह पे हाँ कहो और ना की जगह पे ना। यकीन जाने मुश्किल पड़ जाती है कि अपनी गला सुनाइए, अगले दिन देखते मुताबिक गला सुनाइए। और कलाम दो धारी तलवार की तरह ये लगता है। अभी ये बच्ची ने पिछले दिन में कलाम सुनाया, जब आप कहते हो खुदा का कलाम आपके लिए जो लगेगा तो फिर कहते हो लगता है। पहले दुआवां करते पे खुदा का काम साडे वास्ते होवे, तो जो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते होएगा तो साडे अंदर तो खोट है, गंदगी है। तो फिर गंदगी में जो धोता है तो फिर सानू है वो चमांदा है। तो सारी गल है सेपरेट होके चमाएगी तो जख्म होएगा। क्या करेगा, क्या करेगा? तानू खुश करने बस कलाम सुनाते रहिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसा कोई है ही नहीं है, हैं? बस है गला हो, बस और गल कोई नहीं होनी। जो तो ताड़े माँ को कहती नहीं तो ताड़े मेरा है कोई, मेरी जरूरत क्या थी? आगे लिखा है कि तेरी बारगाहों में एक दिन हजार से बेहतर है। खुदा के घर में, खुदा की बारगाहों का मतलब क्या होता है? खुदा का मस्कन, खुदा का घर, हैकल, वो जगह जहां पर खुदा है, वो जगह जहां पर खुदा रहता है, वो जगह जहां से खुदा अपनी एनवायरनमेंट को जाहिर करता है। जब आप खुदा की बारगाहों में आते हैं, खुदा के हुजूर झुकते हैं, तो यकीन जाने आपके नामुमकिनात का मुमकिन होना शुरू हो जाते हैं। आपकी जिंदगी बहाल हो जाना शुरू हो जाती है। आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती है। आपकी जिंदगी में सुकून आ जाता है, आपकी जिंदगी में से बेचैनी जाती रहती है और आप सरफराज होते जाते हैं। अगर आपका दिल खुदा की बारगाहों में गुजरेगा, बारगाहों से
मुराद खुदा का मस्कन, मस्कन वो जगह जहाँ खुदा रहता है और जहाँ से वो अपनी अनाइंटिंग, अपनी बरकतों को जाहिर करता है, और खुदा अपनी बरकतों को अपने घर से जाहिर करता है, अपने मस्बे से जाहिर करता है। जब खैमा इज्तिमा में लोग जाते थे तो वहां पर एक पाक मकान था और एक पाक तरीन मकान था, और जब पाक मकान से गुजर कर पाक तरीन मकान में जाते थे तो वहां पर खुदा की हजूरी होती थी, क्योंकि वहां पर जो मस्जिद सीट होती थी, लोग फूल वहां पर छिड़कते थे और खुदा आकर उसकी सुगंध लेता था और वहां से अनाइंटिंग साफ होती और लोगों को बरकतें मिलती। आप कहते हैं आपके घर में बैठ के आपको बरकतें मिल जाएंगी, यकीन जाने ऐसा नहीं होगा। बड़ी बुरा यहाँ पर जो बयान कर रहा है, भाई मैंने बहुत साल गुजार लिए, अब मैं तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, और मेरी नजर जमीनी शोहरत पर नहीं है, मेरी नजर जमीनी कामों की तरफ नहीं है, मेरी नजर मटीरियलिज्म में नहीं है कि दूर बैठ के दुआ अच्छे अल्फाजों में करता रहूं। अब खुदा मैं जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और कौन सा ऐसा शख्स है जो मुझे तेरी मोहब्बत से जुदा कर पाए? अरे ये दुनिया के लोग मुझे नहीं जुदा कर पाएंगे। मेरी दुआ को सुन, कान लगा, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ लश्करों के रब, ऐ अब्राहम इसहाक के खुदा, मेरी दुआ को सुन, क्योंकि तू ही मेरी सिफर है, तू मेरी ढाल है। भाई अगर जुल्म करते हैं तो तू बचाने की ताकत और कुदरत रखता है, क्योंकि तेरे हुजूर गुजरा हुआ एक दिन 1000 दिनों से ज्यादा। कभी कहा है, सच्चाई बताइए, कभी कहा है हमें तो ठंड पड़ती कोई अपना मिल जाए? साल तो ठंड मिलती है, कोई अपना खुदा मिलती तो सानू जस्तुजू नहीं होती। जो बीमारी पैंदी है ना, एक भैन दा अस्सी साड़ी बैठी जस्सू बड़ा चंगा है, तो बाद चो कोई चंगा चुंगा नहीं है। मैं बाद चो देखना चंगा ही कोई नहीं है, पर कोई और चंगा होता है। तो मैं चाहता हूं सर्द ना रहे, ना नींद गर्म रहे, बल्कि आप खुदावंद के साथ चलते हैं। यकीन करें खुदा के साथ चलना होगा। और वो नारा मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं इम्प्रेस था, और मैंने बाद में उसको समझाया, मैं कि यार ये होनी चाहिए यीशु, वो यीशु के लिए सैर करने जाए आज जिंदाबाद। यकीन करें, अपने आप को पहचाने कि कहां पर खड़े हैं, देखें कैसे चलते हैं, नदानों की तरह या फिर मर्दों की तरह चलते। अपने आप को परखें, खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे हो जाए, खुदा के दिल की मुरादें पूरी करेगा। कोई इंसान नहीं कर सकता है, कोई इंसान नहीं करेगा। आगे बड़ी खूबसूरत बात, मैं क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना। मैं अपने घर का लफ्ज बड़ा, इसके ऊपर मैंने आना था। मैं अपने घर का दरबान उर्दू लुगत में चौकीदारी को कहते हैं, चौकीदारी करने वाला। असली कहते हैं गंदा काम तो थले खोना पेगा, लोगों को चेक करना पेगा। आज जब मॉर्निंग टाइम आया तो मैंने कहा डस्टिंग कराया करो, सारे नहीं कराया करो, चट्टी साफ सुथरा ही करे। लोग मुंतकी पीते बुरी गल की, तो वो की कह रहे मैं खुदा के घर का दरबान बनने वास्ते नहीं होता, चौकीदारा करने वास्ते। चौकीदार अगर यहाँ पे किसी को कह देना कि तू काम करना, एक दिन करके तो साल बाद बोले तो भाई साहब मैं तेरे को बड़ा काम बड़ा करता पूरा कोई भी नहीं, तो कहना पड़ता है। एक दिन कर लिया तो साल पूरा छड़ देता। तो ये इस तरह बरकत मिलती है, कोई बताएगा इस तरह बरकत मिलती है। एक दिन तो आप कर ली साल बाद की कोई ना, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਖਾਓ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਰਜੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? चक्कर ही सारा रोटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बरकत नहीं मिलती, आपके मतलब का कलाम नहीं हो रहा, मुझे पता है। आपके मतलब का कलाम ये नहीं है। मैं आपकी तरीफ में बाजी कहता थोड़ा बटा लेता है, बाजी कितनी सोहनी बन के, बाजी ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਬਾਜੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਬਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਓ ਯਾਰ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਿਲਾਤੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
آپ میرے لیے نہیں کرتے, خدا کے لیے کرتے, اور میرے کچھ نہیں دیتے, اور نہ میں آپ کے پیسوں پہ پلتا ہوں, میں تمام چیزیں نہ کرتا ہوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو وہ کہہ رہے میں چوکی دارے کر کیوں تیار ہوں. کون کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ اپنی بائبل دیکھیں کون کہہ رہا ہے. سونیا ذرا پڑھے, ذرا 10ویں آیت کھڑے ہو کے, 10ویں آیت کو پڑھے آوازیں بلند. اب یہ شرارت کے خیمے کون ہے؟ وہ جہاں پہ تعلق, وہ میری بہن کی نہیں سونی لگتی پئی ہے, اور میری بہن وغیرہ کی کوئی بہن ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی عزت لوگ کہہ رہے ہیں یار ساڈی تے اوتھے چلے جاندے ہیں, وہ چرچ تے بڑی عزت بڑی ہے. انہوں نے تو دیکھیا نہیں تھا, 4 دن کس نے کٹی ہے, کسی نے کھا لو یا کسی نے سفر کرو, لگ پتے جاتے ہیں سارے یہ بندہ کلے جو گیا ہے. کبھی سنا ہے یہ ایگزامپل؟ کبھی سنا؟ آپ کی ماں جو آپ کے نخرے برداشت کرے گی, کوئی دوسری عورت لاکھ دفعہ کتنی بھی اچھی ہو جائے وہ آپ سے کبھی وہ نخرے برداشت کہتے ہیں. ایک مثال مجھے پسند آئی اور وہ شعر یقین میں نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا اس نے, کہ جی ساری زندگی پیکے رہی ہے, ساری زندگی عورت سورے جانا, ایک دن سورے جانا. کوئی جڈی بندی میر تو میر کی ماں رہے گی نا, اپنی تین کا آدمی رکھے گی, رکھے گی. ایک دن وہ کہے گی کہیں شادی کرنی ہے اپنے گھر بڑی ہوئے, خوشی نہ ساڈے گھر, خوشی نہ سال رہے, خوشی نہ رہے, اپنے بندے بیوی بچے نہ رہے, لڑکے نہ آئے ساڈے گھر. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ساری زندگی پیکے رہی ہیں عورت, یعنی آخر سورے جانا. 100 گنا میری ماں کچے, یہ میں ادھر مخاطب ہوں, ماں ادھر ہے, ماما سارے ادھر ہے. 100 گنا میری ماں کچے, سس ایک کچے تے جانا. میں تعلیم نہیں کرتا. اچھا سچی گل دسو, سس کٹتی ہے, سس کٹتی ہے, پر ماں بھائی ماں کا متبادل کوئی نہیں ہوتا. اور جہاں تریفت ماں جو بھی ہوگی تمہیں اچھا ہی کہنا ہوگا. ماں واسطے کوئی بچہ کسی کا نک بھی وقتا ہوئے, کالا رنگ ہوئے, وہ کہنا میرا چل گیا, سانو بڑا پیار لگتا ہے, پلیز دور سانو پیڑا. ماں نہیں ہے نا سینے نہ جب پانا تو ان کی آندرا نے. میری بات فالو کر رہے ہیں آپ؟ تو خدا کہتا ہے کہ یقین یعنی سچائی بیان کرنا بڑا مشکل ہو جائے. شرارت کے خیاموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا. ان لوگوں سے بچے جو ایسے ہی آپ کی خوشامد کرتے رہتے ہیں, خوشامد پرست لوگوں سے بچے. میں آپ کو دوست کون ہی ہوگا جو آپ کی تعریفیں کرے. بھائی جو آپ ہو وہ تو آپ کو پتا ہی ہے, جو نہیں ہے وہ پتا کرو. جو آپ ہیں وہ آپ کو کسی دوسرے سے زیادہ بہتر پتا ہے. آپ جانتے ہیں آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کیا نہیں کر سکتے. کیوں آپ کے کام کرستے ہیں اگر آپ چھوڑ دوں. ارے وہ دوست ہے آپ کا جو نمک کی طرح کڑوی بات کرتا ہے لیکن نمک ذائقے دار بنا دیتا ہے. بات اس کی کڑوی ہوتی ہے لیکن نمک کیا کرتا ہے, آپ مر جاتا ہے, مٹ جاتا ہے. نمک کڑواہٹ کو پیدا کرتا ہے, چینی نہیں کرتی, نمک کڑواہٹ پیدا کرتا ہے. لیکن وہ آپ کے اندر آپ کو نمکین کر دیتا ہے, مزیدار بنا دیتا ہے, تاکہ جب آپ کے اندر سے کوئی بھی بات نکلے تو وہ نمکین یعنی مزیدار ہو. کسی نے پتا ہو کہ نمک مجھے صحیح نہیں ہے. ہاللیلویا, تعریف جانتا تھا چلی لگتی جو تعریف جانی تھی میں بول کے جاؤ. میں آپ کو بتاؤں تعریف سنی اپنی پیاری لگتی تو آپ ہے ہی, مجھے یہ نہیں بات کیا ہے. پچھلے دنوں میں یہ ایک رسمی چیزیں ہوتی ہیں تو میں نے سیکھ لی یہ بات کی. ایک بہن تھی, وہ آئی میرے پاس, مجھے گلے ملی, میری بڑی بہن تھی, کزن سسٹرز کہہ سکتے. شادی میں تو میں نے کہا باقی آپ بڑی پیاری لگتی ہے, تو مجھے کہتی بات تو نہ خوشگوار گزری مجھے, تو میں نے ایز اے فارمیلٹی ایک اچھے لفظ بولے. تو میں بھی سوچ رہا تھا وہ کہے گی آپ بڑے اچھے لگتے ہیں, فارمیلٹی ہوتی ہے پارٹیز میں, شادیوں میں جائیں, ایک کیجولی یہ لفظ بولتے ہیں بھائی آپ بہت پیارے لگ رہے ہو. باقی آپ بڑے پیارے, میں نے کہا باقی آپ بہت پیاری لگ رہی ہو. کہتی کہ میں ساجد بھائی یہ سننے کے لیے تو نہیں آئی, مجھے پتا ہے میں پیاری ہوں.
अच्छा 2 मिनट के लिए मैं सत्य में चला गया, मैं कड़ी गाल काट दी। लेकिन बाद में मैंने गहराई में सोचा और मैंने सीखा, उस बात से मैंने सीखा कि यार जो इसको पता है वो है, मैं वो बात करता जो इसको नहीं पता है, मैं वो बात करता जो इसको नहीं पता है। और ये बात, क्योंकि बात में ही सी बात निकलती है, बात में ही से। तो शरारत के ख्यालों में ना बसे। वो कहता है कि भाई बाहर जलावतन हुआ हूँ, मुझे बड़ी शोहरत मिल रही है, बड़ी दौलत मिल रही है, लोग मेरी पसीराई कर रहे हैं, और लेकिन खुदा जो मोहब्बत और जो बरकत तेरे कदमों में बैठकर मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। खुदावन तू खड़ा है, मैं तरसता हूँ उससे बात करने। अरे मुझे चौकीदारा बना दे, चौकीदार बना दे, मैं चौकीदार बन जाऊंगा। मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ तुझसे कि मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे ये चौकीदारा, ये छोटा काम, ये भयानक काम, ये काम मुझे तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर पाएगा। अरे मैं अगर चौकीदारा भी कर लूँ तो तेरे लोगों को तेरे घर में तो लेके आऊंगा, दरवाजा तो खोलने वाला हूँगा। बढ़िया बढ़िया कुर्सियां चाहिए। यकीन जाने मैं भी जब कहीं जाता हूँ तो मैं लपड़ा हूँ, मैंने कितने बात रियलिटी। अच्छा ये बात अब की नहीं है, मैं जब 3 एज में था तो खुदा ने मुझे सरफराजी दे दी और मैं एज ए वर्शिपर, और खुदा का शुक्र है 30 40 50 शगीर उस वक्त मेरे साथ होते थे और मैं पीर बनया हूँ। झूठा पीर एवं पीछे लाया कि गाना गुना सुनाना वाला बोलो, मतलब सेकुलर था तो झूठा पीर ही था, यीशु में तो नहीं था। तो हर गीत गाने वाला को खुदा का प्रस्ताव नहीं होता, मैं भी नहीं करता। नाले गीत भी गाई जाना, नमन जी भी ठोकी जानी है, ठीक है, शैतान भी कि जनाब यीशु यीशु का तो बाद शैतानी काम कर दे हो, रूहानी कसम भी गाई तो गीत गजल भी ना लगाए हो। तो जो मसले में चढ़ना शैतान तेरा नहीं जोर चलना, मंदी ठोकी कोई चक्कर नहीं। लेकिन रूहानी तो साइड पे ही रूहानी होना बड़ा दूर की गल। रूहानी शख्स वो होता है जो सुबह दोपहर शाम खुदा के कलाम के मुताबिक गुजरे, बस रूहानी की डेफिनेशन नहीं है कुछ ज्यादा। तो क्या बात कर रहा था, सॉरी, सेकुलर सिंगिंग करता था। तो मेरे साथ लोग होते थे तो मैं तलाश करता कौन सी बात है, कौन ही है तस्वीरें मेरे अंदर काम करती हैं। लेकिन मुझे पता भी होता है किसी ने चंगी जगह नहीं पढ़ा, लेकिन यकीन करें मैं अपने आप को बड़ा संभाल के रखता हूँ। मैं जानबूझ के नीचे कहीं ऐसी जगह पे बैठने की कोशिश करता हूँ, बिब्लिकली पैटर्न भी है कि जो कोई उठ के भावे ना उनको फिर इज्जत होगी। ये उठ के तो उन बंदे को अपने आप का पता होगा ना, अपने क्राइटेरिया का पता होगा मैंने की करना है, नाले अगले का भी पता लग जाता खानदानी बंदा कि किवें दा है, वो इज्जत देता भी है कि नहीं, ये इज्जत लेता ही है। तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ चीजों से निकल है। मुझे मेरे उस्ताद जी ने एक बात बताई, तब से ये तस्वीर मेरे अंदर से निकली। ये डीमन स्पिरिट, ये डीमन स्पिरिट, ये तस्वीर है। उन्होंने मुझे बात बताई, साजिद क्यों इन चीजों की फिक्रों में रहता है सब और सब। इज्जत तेरी बतावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा जो यूट्यूब का खुदा बनाएगा उनको घटा नहीं सकता, किसी के प्यो दे ताकत नहीं है कि उसको घटा दे। जेड़ा दीवा मेरे यीशु ने बालिया उनको घटा नहीं सकता। तो सरफराजी ना मशरिक से, ना मगरिब से, ना शुमाल से, ना जनूब से, बल्कि और उससे पहले ताबेदारी में है, उससे पहले ताबेदारी में है, लीडरशिप में है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से मेरे पता बड़ा मुश्किल है की गल करनी थी, क्योंकि गला सानू सारी लिपटियां चिट्टियां चंगियां लगती हैं, क्योंकि हमारी बेस इतनी खूबसूरत बनी हुई है, हमारी बेस इतनी खूबसूरत बनी। यहाँ पे इकरार करेंगे जैसे आप घर जाएंगे खत्म, सारी बातें खत्म। अगर आप खुदा से बरकत चाहते हैं तो खुदा के घर की तरफ आ जाए, खुदा के घर की तरफ आ जाए। किसके घर की तरफ आ जाए? भैणा भरावां दे घर नहीं जाना, खुदा के घर जाके फिर जितने मर्जी घर कर जाते फिर। हालेलुया, हालेलुया। मैं जोर करता नहीं खुदा की तरफ।